Okay, let's continue. So I was talking about physical quantity. So anything which can be measured or calculated. So for example, temperature, mass, weight, distance. Temperature is measured, mass is measured, weight is calculated, distance is measured. How to measure distance? Using odometer of a car, right? And again, if I ask what is how will you find the value of average speed? So average speed can be calculated with the help of this formula: total distance by total time taken. Again, time can be calculated or measured. Time is measured using stopwatch. So time is measured using stopwatch. So as I said earlier, physical quantity, anything which can be measured or calculated. So some quantities will be measured with the help of some instrument, like for example time we use stopwatch, and for distance we use odometer, weighing machine. For mass and temperature, thermometer is used. Fine. So and for calculation, it can be calculated, like for example mass, weight is calculated, distance is calculated, average speed is calculated. So these are all physical quantities, and there are many more examples. For example, density. What is the formula for density? Density is equal to mass upon volume. Again, mass is measured, volume can be calculated, depends on the shape of the object. For example, if it is cubical, then we will use the formula of side cube. If it is a cube object, then if we know the side, then first we have to measure the side. Side is measured, then I will use the formula v is equal to a cube is the side. So in that way, I am indirectly I can say I am measuring volume with the help of any scale or screw gauge or vernier caliper. These are scales, screw gauge. We will study this in later topics. Screw gauge, vernier calipers, or simple scale that we use in our everyday life in order to find the length of any object. So density can be calculated, mass can be measured, side of cube can be measured. So, and I will give few more examples. You know how to find the value of speed of light. It is also measured with the help of the same formula, distance upon time. So distance is measured, distance, and time is also measured, right? And yeah, and with the value was very exact after measurement. It is found to be exact to 3 lakhs kilometer per second. Are you getting? So that those instruments that we have used for calculating distance and time, those are very complex. The scientists mounted two different instruments on two different mountains, and then calculated the time taken and the distance between the mountains. And then we have electric current. Can you name what is the instrument for measuring electric current? Again, it is another physical quantity. Yes. Have you heard about ammeter? Ammeter is an instrument which is used to measure electric current in ampere, right? Then if I ask you to calculate electric charge, so it can be calculated using two different formula. Q is equal to Ne
and Q is equal to current into time. Yes, right. So electric current, ammeter is a device or instrument. So electric current is measured. Now how it exactly works, that is our different topic. That is a moving coil galvanometer is there. Using that we can measure electric current and electric charge using these two formula. If we know how much how many electrons are flowing per second, then I can find this charge, and what is the current, and in what time duration I am calculating the value of charge. So I will simply multiply current with time to get the value of charge, right? So here electric current is measured, electric charge is calculated. Sometimes we have to count, okay, so that is also physical quantity. For example, amount of substance, it is a number, right? And its SI unit is 1 mole. Well, you know 1 mole is 6.023 into 10 raised to 23 particles. Now these particles can be atoms, molecules, ions, electrons, protons. So these many particles will constitute 1 mole. So it is a number, so it is fixed. And if you want to use some formula to calculate number of moles, then these are the formula. Number of moles is equal to mass of gas upon molar mass of gas. So this way I can find the number of moles of a gas, or mass of substance by atomic mass. So in using this formula I can find the number of atoms of solid metals, you can say. Suppose I want to know how many atoms are there in 1 gram of sodium. This is the question. How many atoms are there in 1 gram sodium? Are you getting? So 23 is the atomic mass, 23 gram per mole. This is the atomic mass of, that means 1 mole atoms of sodium will have 23 grams, or you can say 23 grams have these many atoms. So 1 gram will be equivalent to, now you have to divide this number by 23. So 6.023 into 10 raised to 23 whole upon 23. This way you will get number of sodium atoms in 1 gram sodium sample. One more example of hydrogen gas I will give you. Molar mass of hydrogen gas is 2 grams per mole. That means Na means 6.023 into 10 raised to 23. The name of this number is Avogadro's number. So these many numbers will have 2 grams. Na constitutes 2 grams. Suppose I want to find what is the mass of one molecule. 2 grams is the mass of Na molecules. Now I want to find what is the mass of one molecule. So how to calculate? Mass of one molecule is equal to 2 grams divided by Na.
So that is 2 grams divided by 6.023 into 10 raised to 23. This is a very small number, right? So 1 molecule of hydrogen gas. Suppose I have carbon. Suppose I want to find what is the mass of one carbon atom. So atomic mass of carbon is 12 grams per mole. That means 6.023 into 10 raised to 23 atoms will have mass of 12 grams. So one atom will have mass of 1 into 12 unitary method divided by 6.023 into 10 raised to 23 grams. Are you getting? So all these things we are calculating. So number of moles can be calculated, molecular mass of molecules, that also can be calculated. So let's go back to where we were. Speed of light, then electric current, electric charge, amount of substance, right? And there are many more physical quantities, so that we will cover when we start later chapters. For example, displacement, velocity, acceleration, we will cover in kinematics. Then we have momentum, force, angular momentum, moment of inertia in laws of motion. The friction force, you have potential energy, kinetic energy, in work power energy. So later chapters we will study other quantities. So now I will discuss about units. Next topic, unit of physical quantity. What is the basic meaning of word unit? One, right? जैसे हिंदी में हम बोलते हैं एक रहना, है ना, सब एक रहेंगे तो कहते हैं ना शक्ति रहेगी। कहने का मतलब वन, यूनिट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं फैक्ट्री में हूँ, कार की फैक्ट्री है, सो एक कार बन के तैयार हो गई तो मैं कहूँगा 1 यूनिट कंप्लीटेड। 100 कार्स तैयार हो गए, सो मैं कहूँगा 100 यूनिट्स कंप्लीटेड। सो यूनिट का मतलब होता है 1। अभी देखो, जैसे कि सपोज मुझे मालूम है 1 सेंटीमीटर कितना होता है। 1 सेंटीमीटर इज नोन टू अस, वी नो हाउ मच इज 1 सेंटीमीटर। एंड सपोज आई वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ tablet or mobile phone. Okay, so I will see how many 1 centimeters are there in the length of tablet. So length of mobile screen, you can say, and I compare the length of mobile screen with length of 1 centimeter. Compared with length of 1 centimeter, and I got to know that suppose 12 1 centimeters are there in the length of mobile screen. So I will write 12 into 1 centimeter. So what is the length of mobile screen? 12 centimeter. And the width, this is the mobile phone suppose, so this is 12 centimeter, and width, suppose when I compare the width of mobile phone, I got to know that it is 4 times the length of 1 centimeter. So width is 4 centimeter.
So when I measure any quantity, first of all I will use what I know already. Like 1 centimeter, I know how much it is. I have a scale. Okay, I have a scale, and in that scale there are divisions such that each division is 1 centimeter long. Then I am comparing the physical quantity with that known quantity, which is also known as unit. Then I will find what is the magnitude, like with what number I have to multiply that unit to get the complete physical quantity. So that number is 12. So quantity can be written as number multiplied by unit of physical quantity. In short, I can write Q is equal to NU. So what is unit now? So there is definition also for the unit. What is a unit of physical quantity? It is a fixed standard chosen to compare physical quantity. टू कंपेयर फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम कंपेयर करते हैं एक फिक्स स्टैंडर्ड को. सो वो फिक्स स्टैंडर्ड हमारे लिए क्या हो जाता है? यूनिट हो जाता है. एंड फाइनली हाउ विल यू राइट क्वांटिटी? इट इज नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट. तो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, देखो. और यूनिट की प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं वो भी मैं बताता हूँ, देखो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव, जैसे हम जाते हैं मार्केट में हम जाते हैं, हम पोटैटोज खरीदने जाते हैं, ठीक है. तो उसके पास वेट्स होते हैं, ठीक है ना, 1 kg 2 kg के वेट्स होते हैं. मैंने उससे कहा 5 kgs ऑफ पोटैटोज आई वांट टू परचेज. तो एक साइड वो क्या रख देगा बैलेंस में, 5 1 kg वेट्स वो पुट कर देगा, ये 5 1 kg वेट्स है. और दूसरे साइड वो पोटैटोस रख देगा. तो उसके लिए 1 kg का जो वेट है वो यूनिट हो गया, ठीक है. तो क्वांटिटी को मैं क्या लिखूंगा? क्वांटिटी इज इक्वल टू 5 इंटू यूनिट. 5 तो एक नंबर है, 5 इज अ नंबर. मल्टीप्लाइंग मैग्नीट्यूड भी हम कह सकते हैं, मल्टीप्लाइंग मैग्नीट्यूड. और यहाँ पर यूनिट क्या है? 1 kg. सो यहाँ से देखो क्वांटिटी हो गई हमारी 5 kg, ठीक है ना. अच्छा, हो सकता है कि वो उसके पास 5 kg का ही एक सिंगल वेट हो, बड़ा सा वेट हो. 5 kg का देखते हैं ना, 2 किलो का भी वेट मिल जाता है. तो फिर उसको 1 kg के अलग अलग यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल वो 5 kg का वेट यूज़ कर लेगा. तो इस केस में हमारी क्वांटिटी क्या होगी? सेम रहेगी. स्टिल द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज 5 kg. बट व्हाट हैज़ चेंज्ड? चेंज क्या हो गया? अब यूनिट चेंज हो गई. देखो एक यूनिट की अब वैल्यू क्या हो गई है? 5 kg. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1. तो यहां से नोटिस करने वाली एक बात आ गई, एक प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं, यूनिट की एक प्रॉपर्टी आ गई है. व्हेन वैल्यू ऑफ यूनिट इज मेड 5 times, the number is reduced to reduced to 1/5 times.
ठीक है। अभी मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया हूँ मास का, बट आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब फोर्स, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और भी क्वांटिटीज आएंगी, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आएगा वहाँ। एनसीईआरटी खोल के देखना, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में ही ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो करेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी मैं समझा रहा हूँ कि कैसे यूनिट और नंबर कैसे मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी बनती है। तो यहाँ से एक हमारा कंसेप्ट तैयार हो गया दैट क्वांटिटी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। चेंज क्या होता है, नंबर चेंज हो सकता है बिकॉज यूनिट चेंज हो सकता है। यूनिट को बड़ी रखें तो नंबर छोटा हो जाएगा, यूनिट छोटी हो जाती है तो नंबर बड़ा हो जाता है। सो n into u is constant, so n is inversely proportional to unit। ये हमारा कंसेप्ट है। तो प्रैक्टिस के लिए अभी मैं कुछ डेंसिटी के एग्जांपल्स लेता हूँ, वॉल्यूम के लेता हूँ, ताकि ये कंसेप्ट हमारा स्ट्रांग हो जाए कि कैसे n इंटू यू क्वांटिटी होता है। तो चलो देखो ध्यान से। Density of a substance is 1 gram per centimeter cube. Find its density in kg per meter cube. Find its density in kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से अब कैसे हम निकालेंगे, तो ये जो वाटर है, वाटर का होता है 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। चलो बताओ, आंसर बताओ इसका क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओ। वन ग्राम पर सीसी को केजी पर मीटर क्यूब में लिखना है, तो ये हो जाएगा N1U1 इज इक्वल टू N2U2। जो हमने पिछला कंसेप्ट अभी पढ़ा है यहाँ से, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, सो दैट इज, यहाँ से हम लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। सो N1 कितना आ गया 1, U1 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और N2 फाइंड करना है। व्हाट इज U2, kg, 1 kg अपॉन 1 मीटर क्यूब, राइट। सो देखो ध्यान से, ओके चेक करते हैं, आई विल चेक योर आंसर। यहाँ से देख सकते हो N2 इंटू 1 kg, 1 kg को हम रखेंगे 1000 ग्राम, और 1 मीटर को रखेंगे 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर का क्यूब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये बन जाएगा N2 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 10�6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इक्वल करो, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हुआ। तो यहाँ से देख सकते हो 1 इज इक्वल टू N2 इंटू 10⁻³ माइनस 6। आर यू गेटिंग? तो यहाँ से N2 आ गया 10⁻³। यही हमारा आंसर है। ओके, सो डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। फाइन। चलो एक में आगे का एक कंसेप्ट है, हाँ यूनिट इतना सफिशिएंट है। और भी देखो, वैसे तो प्रॉपर्टीज़ की होती है कि यूनिट मस्ट बी फिक्स्ड, है ना, चेंज नहीं होना चाहिए, जगह के साथ टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, और इजीली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए यूनिट। फॉर एग्जांपल 1 मीटर मेरे लिए जितना है तो 1 मीटर उतना ही होना चाहिए किसी दूसरे पर्सन के लिए, जगह के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है। सो अभी देखो एक क्वेश्चन है, देखो या ध्यान से, एक क्वेश्चन है।
Speed is given by distance upon time. Acceleration is given by, conceptual question है, ध्यान से देखो. Acceleration is given by change in velocity by time taken. Force is given by product of mass and acceleration. So यहाँ से देख सकते हो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं फोर्स डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स डिपेंड्स ऑन मास इनटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन डिपेंड कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है. यहाँ मैं लिख देता हूँ, करेक्ट. वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ, राइट. डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है. सो फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर. अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे शुरू होता है, देखो ध्यान से. इफ 1 यूनिट ऑफ मास इज मेड 2 टाइम्स, ये जेई एडवांस तक में आते हैं ऐसे क्वेश्चन. और सेट में भी आते हैं, सेट 2. 1 unit of mass is made 2 times, 1 unit of displacement is made 1/3 times, 1/3 times, time is made 2 times. What is the effect on unit of force? What is the effect on unit of force? ये क्वेश्चन है, ठीक है. MCQ भी हो सकता है, 4 ऑप्शन रहेंगे इसके. एक ऑप्शन हो सकता है 2 टाइम्स, एक ऑप्शन हो सकता है 1/3 टाइम्स, ठीक है ना, इस तरह से. तो हम ये फॉर्मूले पे चाहते हैं, मास डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ भी ले सकते थे. सो कैसे अब आएगा इसका आंसर, देख सकते हो. 1 unit of force is equal to 1 unit of mass into 1 unit of length by 1 unit of time whole square. इसको शॉर्ट में ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, F is equal to ml upon t square. इसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा. सो ml t raised to -2. यहाँ से मैं जल्दी आंसर आ जाएगा. सो जैसे कि मास के लिए मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स हो रहा है, और लेंथ देख सकते हो 1/3 टाइम्स हो रहा है, टाइम हो रहा है 2 टाइम्स. सो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 टाइम्स. यस, करेक्ट, वेरी गुड. तो ये कैसे यूनिट को चेंज करने से हमारी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज हो जाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट को चेंज करने से. तो अब मैं एक एक करके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की लिस्टिंग कर रहा हूँ. देखो, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये 7 ही डिफाइन की गई हैं, ठीक है. तो पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ मास से. इसका सिंबल हम जनरली क्या लेते हैं, स्मॉल m, ठीक है. एक से ज़्यादा ब्लॉक्स हैं या मास हैं तो M1, M2, M3 ऐसे शो किया रहेगा.
कई बार कैपिटल एम भी हम ले सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पूरा यूनिवर्स है, उसमें क्या है, या स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो स्पेस में क्या है? खाली जगह है, जैसे वैक्यूम है अगर, तो एनर्जी हम कह सकते हैं एनर्जी वैक्यूम में हो सकती है। और अगर वैक्यूम नहीं है, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर स्पेस को फिल कर रहे हैं, तो फिर उसमें मास आ जाएगा। तो कितने सारे पार्टिकल्स हैं, उन सब का मुझे क्वांटिटी निकालना है, तो वो उसके लिए मास, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, उसको मैटर कहते हैं, ठीक है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का हम देखते हैं तो मास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। फोर्स निकालना है, फोर्स निकालने के लिए किसी का एक्सेलेरेशन मालूम है, ठीक है, मास मालूम है तो फोर्स आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मोमेंटम निकालना है, तो मास की ज़रूरत रहती है। वेट फाइंड करना है, तो मास के लिए मास की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी ऐसा यूनिट भी हम साथ में लिखते चलते हैं। ऐसा यूनिट होती है 1 kg, अदर यूनिट्स 1 ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है ना, सेंटीग्राम भी हो सकता है, माइक्रोग्राम भी हो सकता है, 10⁻⁻⁶। चलो नेक्स्ट, अब हम लेते हैं लेंथ। इसके लिए सिंपल मुझे लेंथ का डिनोट करना है तो स्मॉल एल हो सकता है, कैपिटल एल, ठीक है। तो लेंथ क्या है? ये जनरली हमको डायमेंशन बताने में काम आता है, किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, उसका साइज़, ठीक है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट, विंडो है, विंडो की विड्थ क्या है, थिकनेस बताने में काम आ सकता है, ठीक है ना, डायमेंशन बताने में, थिकनेस, हाइट, विड्थ। सर्कल है तो उसका सरकमफेरेंस, रेडियस। फिर आगे हम थोड़ा बड़े लेवल पे आए तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी लेंथ से डिराइव हुआ है, डिस्टेंस। आगे चल के जो हम डायमेंशंस पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो जहाँ भी हमको लगा कि डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, सीधा हम उसको लेंथ कह देंगे, कैपिटल एल। सो बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट का साइज बताने में हमको लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। और आगे देखो, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर। अदर यूनिट्स में लाइट ईयर भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। डिस्टेंस 1 लाइट ईयर, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर टाइम, इसकी 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम हम बहुत छोटा चले गए। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका जो डायमीटर है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और जैसे न्यूक्लियस की रेडियस वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, उसको 1 FM भी कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का रेडियस तो इतने ऑर्डर में होता है, 10⁻⁻15। वेवलेंथ होती है एक्स रेज की वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम्स। तो वेवलेंथ ऑफ वेव्स, ये भी लेंथ है, जैसे 100 एंगस्ट्रॉम मैंने ले लिया, ठीक है ना, एक्स रे का वेवलेंथ। तो ये सब क्वांटिटीज़ हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, ये सब लेंथ है। चलो अभी मैं नेक्स्ट पेज में टाइम पे आता हूँ। टाइम, अगर मैं पूछूं टाइम की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम टाइम को मेजर करते हैं, और ज़रूरी क्यों है टाइम? अभी तो घड़ी है हमारे पास, पुराने ज़माने में घड़ी नहीं थी, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग कैसे देखते थे टाइम? वो फिर सूरज, ठीक है ना, सन को देख के आइडिया लगा लेते थे, पहर हिंदी में बोलते हैं जो। या स्टॉप वॉच का सबसे अच्छा एक तरीका था कैंडल। एक फिक्स लेंथ की कैंडल जला लो, और वो एक हमारे लिए टाइम का एक यूनिट था, ठीक है।
कब तक वो कैंडल फिनिश हो जाएगी जलना, वो एक हमारे लिए टाइम की यूनिट हो जाती थी। तो अभी तो चलो एक ऐसा यूनिट इसकी हम सेकेंड्स मान लेते हैं, ऐसा यूनिट इसका सेकेंड है, 1 सेकेंड। कोई इवेंट कब शुरू हुआ कब फिनिश हुआ उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम टाइम का यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है ना, हम कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं टाइम के रेफरेंस में ही करते हैं। अभी लेक्चर कब शुरू हुआ और कब फिनिश हुआ, ठीक है ना, कितने ड्यूरेशन का लेक्चर था, तो ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। एक रॉक शो भी, अगर रॉक कॉन्सर्ट भी हो रहा है तो उसके लिए भी हम टाइम देखते हैं, क्या टाइम है उसका। ठीक है, हर चीज़ टाइम से ही होती है। एज हम, वो भी एक टाइम है। कोई पर्सन 20 साल का हो गया, वो टाइम ही है ना। सो इसके लिए सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल टी या कैपिटल टी। चलो नेक्स्ट, अब मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिनोट करने का तरीका है कैपिटल टी, स्मॉल टी और थीटा भी हम लिख सकते हैं इसके लिए सिंबल। टेम्परेचर का क्या यूज़ है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका। वेदर, कोई चीज़ कितनी गर्म है, एटमॉस्फेयर बाहर का कितना गर्म है, ठीक है ना। या हमने कॉफ़ी बनाई, ठंडी है क्या कॉफ़ी कि गर्म है। तो फीवर है किसी को, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फीवर है या नॉर्मल फीवर है ना। कोल्ड का भी वही चीज़ है। तो ये सब चीज़ों को बताने के लिए हमको एक फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर, पहले ही मैंने बताया था। तो इसकी एक डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज़ कितना गर्म है। अभी जैसे कि मान लो कि एक फ्रेंड है, वो पहाड़ पर है, बहुत ऊंचे माउंटेन में, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात वहाँ कोल्ड होगा। ठीक है, उसका दूसरा फ्रेंड है प्लेन्स में है, वो पूछेगा कि क्या कितनी बहुत ठंड है क्या वहाँ पे, पूछेगा तो बोले हाँ बहुत ठंड है। अब कैसे उसको वैल्यू में कैसे बताए, क्वांटिटी का क्या है, कैसे वो समझाए कि कितनी ठंड है। तो सिंपल वो थर्मोमीटर लेगा, वहाँ का टेम्परेचर बता देगा। टेम्परेचर मान लो कि वहाँ का बता -2 डिग्री सेल्सियस, और ये जो प्लेन्स में है जो पर्सन वो 20 डिग्री सेल्सियस, ना उसको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ से देख सकते हो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो इसके लिए थर्मोमीटर हम यूज़ करेंगे, थर्मोमीटर। इसकी यूनिट्स होती हैं, जैसे एसआई यूनिट अगर है सो केल्विन, केल्विन इसका एसआई यूनिट है। अदर यूनिट्स में कौन कौन से आते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा जो नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में भूल जाते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्यों हम 3 तरह का यूनिट यूज़ करते हैं। अभी जैसे लेंथ की बात करूँ, मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, उनमें तो रिलेशन है ना। मतलब 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर है, तो उनमें तो रिलेशन है, 10 की पावर का फ़र्क है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, 1 केल्विन और सेल्सियस में ऐसा नहीं है कि 10 की पावर का डिफरेंस होगा। तो क्या डिफरेंस है, वाई वी यूज़ केल्विन इन सम experiments or in some areas of science and Celsius and Fahrenheit in some different areas of science। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ और मुझे सोच के बताना, ग्रुप में बता सकते हो उसका आंसर। केल्विन जनरली हम जब गैसेस स्टडी करते हैं तो यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट जैसे फीवर आता है ना, फ़ारेनहाइट में आता है वो रीडिंग उसकी, जैसे कहते हैं कि 102 का बुखार है, मतलब फ़ारेनहाइट है वो, ठीक है ना। सो डॉक्टर्स लोग फ़ारेनहाइट में बताते हैं, सो मेडिकल में फ़ारेनहाइट यूज़ किया जाता है। सेल्सियस जो बाकी मैकेनिकल ब्रांच है, जैसे कि कोई फैक्ट्री है,
या फिर ये जो वेदर होते हैं ना, जो तापमान बताते हैं, और देख सकते हो फैक्ट्रीज में हम यूज़ करते हैं, फूड फैक्ट्रीज है ना, किसी पर्टिकुलर फूड को कितना देर तक गर्म करना है, तो सेल्सियस में होता है जनरली। देखो किसी भी वीडियो में अगर कोई फूड प्रोसेसिंग की यूनिट है तो वहाँ टेम्परेचर सेल्सियस में होता होगा, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम गैसेस के साथ तो केल्विन में होता है, ठीक है ना। और डॉक्टर्स मेडिकल, ठीक है ना, ट्रीटमेंट हो रहा है तो फ़ारेनहाइट में होता है। इनके बीच रिलेशन भी होती है, तो मैं शुरुआत करूँगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से, ठीक है। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड एक टॉपिक है, और ये लास्ट मैं यही डिस्कस करूँगा। देखो क्या टॉपिक है, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। इससे क्वेश्चंस जेई एडवांस, नीट और जेई मेन बोर्ड्स में भी आते हैं। हाँ, सो देखो मैं क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस is 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। Boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। Now my question is, find 70 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे होगा? अब पिछली क्लासेस में तो हमको डायरेक्ट रिलेशन बता दी जाती थी, डायरेक्ट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आया कहाँ से? तो ये है क्वेश्चन। तो ये जो स्केल होते हैं ना, ये लीनियर डिपेंडेंस होता है इनमें। एक हिंट दे देता हूँ मैं, देखो जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स फॉलो करते हैं कि इनके बीच रिलेशन कैसी है, लीनियर है। लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सी। तो मुझे मालूम नहीं वो क्या रिलेशन है, तो मैं मान लेता हूँ, आई जस्ट रेज्यूम दैट C इज इक्वल टू AF प्लस B। A और B की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और A की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि C और F में रिलेशन तो होना चाहिए ना। अब मैं ये डेटा यूज़ करूँगा। पहला डेटा यूज़ करता हूँ। C की वैल्यू जब 0 है तो F की वैल्यू 32 है, सो A इंटू 32 प्लस B, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा डेटा यूज़ करते हैं। C की वैल्यू 100 है, F का वैल्यू 212, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सेकेंड माइनस 1, सो 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 212 माइनस 32 इंटू A। B कैंसिल हो जाएगा, सो A की वैल्यू आ गई, देख सकते हो 100 अपॉन ये कितना हो गया, 180, दैट मीन्स 5/9। A की वैल्यू आ गई। अब B की वैल्यू निकालना, तो B आ जाएगा -32 इंटू A, ये आ गया B। सो यहाँ से व्हाट इज़ द रिलेशन, अब मैं वापस से इसमें पुट कर देता हूँ, तो हमारी रिलेशन आई C इज इक्वल टू 5/9 F प्लस B विच इज़ -32 इंटू 5/9। तो यहाँ से देखो 5/9 मैं कॉमन ले लेता हूँ, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। ये रिलेशन आ गया जो हमको पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में बताया जाता है, ठीक है ना। वो आया कहाँ से, वो यहाँ से आया। लीनियर रिलेशन है, जब पहली बार किसी साइंटिस्ट और रिसर्चर ने इंट्रोड्यूस किया होगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस,
तो यहाँ से उसने रिलेशन निकाली होगी। अब हम 70 पुट कर देंगे, है ना, F की जगह C आ जाएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है। आगे चल के 100 साल बाद मान लो कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें नया स्केल की ज़रूरत आन पड़ी टेम्परेचर के लिए। सो न्यू स्केल ऑफ temperature is used such that melting point of ice is minus 50 degree X and boiling point of water is 200 degree X. Find normal body temperature in new temperature scale degree X. In new टेम्परेचर स्केल डिग्री X। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो शुरुआत कैसे करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने जैसे करके बताया था, यहाँ हम कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू AC प्लस B, है ना, सेल्सियस, C स्टैंड्स फॉर सेल्सियस, X स्टैंड्स फॉर न्यू स्केल, और फिर डेटा हमको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -50 डिग्री x कोई नया स्केल है, और सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 200 डिग्री x। ये दो डेटा हम रख के A और B की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन पूछा है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पुट कर देंगे C को, और x की वैल्यू हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये करो, फिनिश करो इसको, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो। हाँ, इस टॉपिक का बता दो, कुछ डाउट है तो। ओके, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो देखो आज मैंने काफ़ी टेम्परेचर, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स के बारे में मैंने बताया। फिर भी अगर इनमें से कुछ डाउट है या कुछ नई बात है जो मेरे से पूछना चाहते हो, सो एनी टाइम यू कैन डिस्कस विथ मी। ठीक है, ये तो कोई इसकी लिमिट नहीं होती है जितना हम अंदर तक जाएंगे टॉपिक की। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में और डिटेल में दिया होगा, है ना, जैसे कि 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया है, 1 kg को कैसे डिफाइन किया गया है, 1 डिग्री सेल्सियस को कैसे डिफाइन किया गया है। एनसीईआरटी में उसका और थोड़ा थ्योरेटिकल डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप नाउ, सो थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय। You can discuss your doubts. Thank you.